Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. I am your science teacher and in today's video we will start a new unit which is about the plants. All of you have seen different types or kinds of plants at your homes, in school garden, in the parks or on the roadsides. But before starting our unit, we will do the meanings of some difficult words related to the unit. Now here are some difficult words. The first one is living. L-I-V-I-N-G, living. Living means jandar. Living, jandar. Non-living, N-O-N, non. L-I-V-I-N-G, living. Non-living means bejan. Non-living, bejan. Things, T-H-I-N-G-S, things. Things means cheezeं. Things, cheezeं. World, W-O-R-L-D, world. World means dunya. World, dunya. Animals, A-N-I-M-A-L-S, animals. Animals means जानवर. Animals, जानवर. Breathe, B-R-E-A-T-H-E, breathe. Breathe means सांस लेना. Breathe, सांस लेना. Move, M-O-V-E, move. Move means हरकत करना. Move, हरकत करना. Grow, G-R-O-W, grow. Grow means बढ़ना. Grow, बढ़ना. Kinds, K-I-N-D-S, kinds. Kinds means किस्में. Kinds, किस्में. Climb, C-L-I-M-B, climb. Climb means चढ़ना. Climb, चढ़ना. Shade, S-H-A-D-E, shade. Shade means साया. Shade, साया. Shelter, S-H-E-L-T-E-R, shelter. Shelter means पनाह. Shelter, पनाह. Provide, P-R-O-V-I-D-E, provide. Provide means फराहम करना. Provide, फराहम करना. Useful, U-S-E, use, F-U-L, full. Useful, useful means मुफीद. Useful, मुफीद. These are the few difficult words. Now coming towards our unit, open your book page 26. On book page 26, you have unit for plants. Plants means पौधे. Plants, पौधे. Living and non-living things. Living means जानदार. Non-living, बेजान. Things, चीजें. Living and non-living things. So first we will discuss about the living and the non-living things. The world is full of things. World means dunya. So the world is full of things. Some are living things and some are non-living things. So in this world, some things are living and some things are non-living. We can group things according to whether they are living or non-living. So we group the things according to whether they are the living things or whether they are the non-living things. सो हमारी दुनिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है, जिसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो लिविंग हैं, जानदार हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग हैं, बेजान हैं. सो हमने क्या किया है, इन सब चीज़ों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट ग्रुप लिविंग थिंग्स का है और सेकंड ग्रुप नॉन लिविंग थिंग्स का है. एक ग्रुप में हमने जानदार चीज़ों को रख लिया है और एक ग्रुप में हमने बेजान चीज़ों को रख दिया है. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. एनिमल मीन्स जानवर. सो जानवर और पौधे जो हैं दे आर लिविंग थिंग्स. ये जानदार चीजें हैं. यू आर अ लिविंग थिंग टू. आप भी जानदार हैं. ठीक है. लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मूव, ईट, ग्रो एंड हैव यंग वंस. ब्रीथ मीन्स सांस लेना, मूव हरकत करना, ईट खाना, ग्रो बढ़ना. सो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? वो चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं जो सांस लेती हैं, जो हरकत कर सकती हैं, जो खाना खाती हैं और जो बढ़ती हैं, और जिनके बेबीज होते हैं उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. सो एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे कैन ब्रीथ, they can move, they can eat, they grow and they have young ones. So that's why human beings, animals and plants are living things. Many things in the world are not alive. Alive, जिंदा. many, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो हैं वो alive, जिंदा नहीं है. We say they are non-living things. हम कह सकते हैं कि ये क्या है? They are non-living things. They cannot move, they cannot grow, they cannot breathe and they do not eat. वो मूव नहीं कर सकती, वो ग्रो नहीं कर सकती, वो ब्रीथ नहीं कर सकती और वो खा नहीं सकती, ईट नहीं कर सकती. They do not have young ones. और उनके बेबीज नहीं होते,
उनके यंग वंस नहीं होते। सो हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? बिकॉज दे कैन नॉट मूव, वो हरकत नहीं कर सकती, वो बढ़ नहीं सकती, वो सांस नहीं ले सकती, वो खा नहीं सकती और उनके बेबीज नहीं होते, इसलिए वो क्या है? दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। Now we have divided the things in the world into two groups. The one is the group of living things and the other is the group of non-living things. Living things are those which can breathe, which can move, which can eat, which can grow and which have young ones. For example, animals, जितने भी animals हैं वो सारे क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि ये ग्रो करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं, सांस ले सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ये खाना खाते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं। सो एनिमल्स क्या है? दे आर लिविंग थिंग्स। सिमिलरली प्लांट्स भी क्या है? दे आर आल्सो लिविंग थिंग्स, क्योंकि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये मूव करते हैं टूवर्ड्स द सन, सन की तरफ ये मूव करते हैं। सिमिलरली ये ब्रीथ कर सकते हैं, सांस लेते हैं और इनके भी यंग वंस होते हैं, ठीक है ना। तो जो प्लांट्स हैं दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स, हम जो हैं इंसान, वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हम खाना खाते हैं, ईट करते हैं, हम ग्रो करते हैं एंड वी हैव यंग वंस। सो वी are living things. So human beings, plants and animals are living things. Now the second group is the group of non-living things. Non-living things cannot breathe, cannot move, cannot eat, cannot grow, do not have young ones. ठीक है, नॉन लिविंग वो होते हैं जो सांस नहीं ले सकते, जो मूव नहीं कर सकते, जो खा नहीं सकते, जो बढ़ नहीं सकते और जिनके बेबीज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सीजर, पेन, इरेजर, स्टेपलर। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि सीजर या पेन या स्टेपलर या इरेजर या इसी तरह टेबल, चेयर एक्सेट्रा ये ब्रीथ कर रही हैं, सांस ले रही हैं, या आपने इसको इधर रखा है और ये भाग के कहीं और चला गया हो, या ये जो है ग्रो कर गया हो, बड़ा हो गया होगा। आपने इसको रात को इतना रखा हो, जब आप सुबह उठे हो ये स्टेपलर बड़ा हो गया हो। नो, इट्स इम्पॉसिबल। सो ऑल द थिंग्स विच कैन नॉट ब्रीथ, विच कैन नॉट मूव, विच कैन नॉट ईट एंड विच कैन नॉट ग्रो एंड विच डू नॉट हैव यंग वंस आर इन द ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। वो सारी क्या हैं? वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो ब्रीथ नहीं कर सकती, जो मूव नहीं कर सकती, जो ईट नहीं कर सकती, जो ग्रो नहीं कर सकती और जिनके यंग वंस नहीं होते। दे आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। Now on page 27 you have discussed and answer. On page 26 there are some pictures of living and non-living things. Pictures means tasveer. Talk about each things that you can see. See means देखना, each हर एक. Can you say whether it is a living or non-living things? हमें कह रहे हैं कि पेज 26 पर हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की। आपने हर एक को देखना है और बताना है कि whether it is a living thing or it's a non-living thing. Now again come to page 26. Now on page 26 we have the first picture is the picture of a duck. Duck की पिक्चर है। Duck is a living thing क्योंकि ये ब्रीथ करता है, ये मूव कर सकता है, ये खाना खाता है, तो duck is a living thing. Second picture is of scissor. Scissor is a non-living thing. Similarly brush. ब्रश इज आल्सो अ नॉन लिविंग थिंग क्योंकि ये दोनों ना ब्रीथ करते हैं, ना ग्रो करते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना ही ईटिंग करते हैं। सो सीजर एंड ब्रश आर नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ बेबी एंड प्लांट. बेबी एंड प्लांट आर living things because they can move, they can eat, they can grow and they can breathe. Now the fourth picture is the picture of the socks. Socks do not eat, socks do not breathe, do not have young ones. So socks are non-living thing. Duck is a living thing. Baby and plant are also living thing, but scissor, brush and socks are non-living things. Now again come to page 27. On page 27 you have plants. Plants means पौधे. Plants are living things. As we have discussed earlier that plants are living things because plants can breathe, grow, eat and move. Right? So plants are living things. To grow well, plants need good soil, sunlight, air and water. Well means ठीक से या अच्छी तरह से. Need ज़रूरत, good अच्छी, soil मिट्टी, sunlight सूरज की रोशनी, air हवा, water पानी.
प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? उसको गुड सॉइल की, एक अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो, मिनरल्स भी हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो उसको अच्छी सॉइल की ज़रूरत होती है। देन प्लांट नीड्स सनलाइट, उसे सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। प्लांट नीड्स एयर, हवा की ज़रूरत होती है। एंड प्लांट नीड वाटर, पानी की ज़रूरत होती है। टू ग्रो वेल, अच्छी तरह से बढ़ने के लिए प्लांट को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: सनलाइट, वाटर, एयर एंड गुड सॉइल, ठीक है। सॉइल से वो अपने लिए मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स लेता है। सनलाइट जब उसको हम प्रोवाइड करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट कैन मेक इट्स फूड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जितना भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है उसमें प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए फूड बनाता है। फिर एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फूड बनाने में वो एयर भी हेल्पफुल होती है। सो प्लांट को बढ़ने के लिए 4 थिंग्स की ज़रूरत होती है: सनलाइट, वाटर, एयर एंड गुड सॉइल। There are many kinds of plants. Kinds means किस्में। हमारे पास मुख्तलिफ किस्मों के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस। प्लांट्स जो होते हैं मुख्तलिफ शक्लों के भी होते हैं और मुख्तलिफ साइजेस के भी होते हैं। कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। कोई राउंड शेप का होगा, किसी का लीव, किसी का ओवल शेप का होगा, किसी का रेक्टेंगुलर शेप का होगा, किसी का कर्व्ड शेप में लीव होता है। सो प्लांट्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस। मुख्तलिफ शेप्स के भी होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के भी होते हैं। क्लाइंबर्स क्लाइंब अप वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास फर्स्ट टाइप जो प्लांट्स की है वो है क्लाइंबर्स की। एज द नेम शोज क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मीन्स अराइजेस फ्रॉम द वर्ड क्लाइंब, ठीक है ना। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। तो क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जो चढ़ते हैं वॉल्स पर और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे। जैसे हमारे पास पी के प्लांट्स होते हैं, ग्रेप वाइन्स होते हैं या मनी प्लांट्स होते हैं, दे आर ऑल क्लाइंबर्स। देन कम्स सम आर टॉल। टॉल जो होते हैं हमारे पास, कुछ प्लांट जो होते हैं टॉल होते हैं। टॉल मीन्स लंबे। सो कुछ प्लांट्स हमारे पास जो होते हैं टॉल, जैसे ट्रीज होते हैं, जैसे डेट ट्री हो गया या कोकोनट ट्री हो गया या पाइनस ट्री हो गया, दे आर द टॉल ट्रीज। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। फिर हमारे पास नेक्स्ट काइंड आती है क्रीपर्स की। क्रीपर्स किधर ग्रो करते हैं? अलोंग द ग्राउंड। अलोंग मीन्स साथ, ग्राउंड ज़मीन। क्रीपर्स वो प्लांट्स हैं जो ज़मीन के साथ साथ ग्रो करते हैं या क्रीप करते हैं। क्रीप मीन्स रिंगना, तो वो ज़मीन पर रिंग रिंग कर चलते हैं। क्रीपर्स के जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो ग्राउंड के साथ साथ क्रीप करते हैं, रेंगते हुए जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पंपकिन की, वाटरमेलन या मेलन की, ठीक है। जो हमारे पास कद्दू होता है, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, इनकी एग्जाम्पल भी आ सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्रीपर्स के फ्रूट्स इतने हैवी होते हैं कि अगर वो हम उसको स्ट्रेट खड़ा कर दें तो इट में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके स्टेम्स जो हैं वो ब्रोक डाउन हो जाए। तो स्टेम्स को टूटने से बचाने के लिए क्रीपर्स की स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि वो जमीन पर ही क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, ग्राउंड के साथ साथ ही ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। अब कुछ प्लांट्स जो हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे वाटर लिली हो गया या लोटस हो गया, दैट्स अ फ्लावर ऑफ अ लोटस, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं। Basically, we have 5 types of plants. The first one is the herbs. Herbs are basically the smallest plants with green stems. ये smallest plants होते हैं जिनका stem green कलर का होता है, जैसे मिंट हो गया या कोरिएंडर, धनिया या पुदीना, ठीक है ना। ये herbs होते हैं हमारे पास, दे आर द smallest plants और इनके stems क्या होते हैं? ग्रीन कलर के और watery stems होते हैं। इनको हम प्लांट जो फूड होता है हमारा खाना, उसमें फ्लेवर के जायके के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास टाइप आती है श्रब्स आर द स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स। ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं लेकिन इसका स्टेम्स जो होता है वो वुडी होता है, ठीक है ना, लकड़ी की तरह होता है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है रोज की, गुलाब के पौधे की, ठीक है। थर्ड है हमारे पास क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं विच क्लाइंब अप अदर वॉल्स एंड स्ट्रक्चर्स, जो दूसरी वॉल्स और स्ट्रक्चर्स पे क्लाइंब करते हैं, चढ़ सकते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया या पी प्लांट्स हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ एग्जांपल आ जाती है, फोर्थ टाइप आती है क्रीपर्स की। क्रीपर्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड विच कैन ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पंपकिन की, ठीक है। ये पंपकिन का बेल है।
वाइन है, ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ टाइप आती है ट्रीज। ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स, ये सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हर्ब्स आर द स्मॉलेस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। ट्रीज जो हैं वो लार्जेस्ट प्लांट्स होते हैं। जैसे हमारे पास कोकोनट ट्री आ गया, डेट ट्री आ गया, पाइनस ट्री आ गया, एप्पल आ गया, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रीज। सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स: हर्ब्स, shrubs, climbers, creepers and trees. Herbs are the smallest plants with green stems. Shrubs are the small plants with woody stems. Climbers can climb up the other walls and the structures. Creeper can move along the ground or creep along the ground. And then come the trees are the largest plants with woody stem. Now turn the page and come to page number 28. On page 28 we have discuss and answer. How many plants can you think of which give us fruits? Fruit means फल, think सोचना. How many plants can you think of which give us fruit? कि आप सोच सकते हैं कि कितने प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं, ठीक है। कितने प्लांट्स हमें फल दे सकते हैं? हमें जो एप्पल का ट्री है वो भी फ्रूट देता है, जो ऑरेंज ट्री है वो भी फ्रूट देता है, मैंगो ट्री भी फ्रूट देता है. सो देयर आर मैनी प्लांट्स विच कैन गिव अस द फ्रूट्स, राइट. नाउ हाउ मैनी प्लांट्स कैन यू थिंक ऑफ विच हैव फ्लावर्स? क्या आप सोच सकते हैं कि कितने प्लांट्स हमें फ्लावर्स देते हैं? जैसे रोज प्लांट हो गया, जैस्मीन प्लांट्स हो गया. सो देयर आर मैनी प्लांट्स विच कैन गिव अस फ्लावर्स. Now you can discuss this with your parents and write the name of 5 plants which give us fruits and 5 plants which give us the flowers. आपने अपने पेरेंट्स के साथ घर में ये डिस्कस करना है और फिर अपनी रफ कॉपी पे 5 ऐसे प्लांट्स के नेम्स लिखने हैं जो हमें फ्रूट्स देते हैं और 5 ऐसे प्लांट्स के नेम्स लिखने हैं जो हमें फ्लावर्स देते हैं, फूल देते हैं, ठीक है. जैसे कि हमारे पास एप्पल, ऑरेंज, मैंगो ट्रीज हैं, ये हमें फ्रूट्स देते हैं, या रोज एंड जैस्मिन प्लांट्स हैं, ये हमें फ्लावर्स देते हैं. सो आपने भी इसी तरह 5 नेम्स लिखने हैं प्लांट्स के, राइट. प्लांट्स गिव अस फूड. फूड मीन्स खाना. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? खाना देते हैं. सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स आर ईटन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स. सम मीन्स कुछ, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल्स सब्जियां, डिफरेंट मुख्तलिफ, ईटन खाना, ह्यूमंस इंसान, एंड एनिमल्स जानवर. तो कुछ सब्जियां और कुछ फ्रूट्स, फल और सब्जियां जो हमें डिफरेंट प्लांट्स देते हैं वो हम खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है. तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं? प्लांट्स हमें खाना देते हैं जो हम भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. So plants can give us different types of fruits and vegetables like apple, orange, mango, potato, cucumber, radish, carrot, radish, etc. which we use as our food. So different plants जो हैं वो हमें different किस्म के fruits and vegetables देते हैं जो हम भी खाते हैं और animals भी खाते हैं. We also use plants to provide shade and shelter. Provide फराहम करना, shade साया, shelter पनाह. हम जो है प्लांट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना. वी ऑल्सो यूज़ प्लांट्स टू प्रोवाइड. के प्रोवाइड हमें फराहम कर सके, शेड साया फराहम कर सके और शेल्टर पनाह फराहम कर सके, ठीक है ना. अब प्लांट्स जो हैं ये एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को शेड भी प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे एनिमल्स अपने होम्स जो हैं वो भी प्लांट्स में ही बनाते हैं. जैसे बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं प्लांट्स में, ठीक है ना. इसी तरह जब आप लोग गर्मियों में थक जाते हैं तो आप प्लांट्स के नीचे, ट्रीज के नीचे चले जाते हैं और ज़रा देर रेस्ट कर लेते हैं उसके साए में, उसके शेड में, ठीक है. तो प्लांट्स जो हैं ये हमें शेड भी प्रोवाइड करते हैं, साया भी देते हैं और साथ साथ हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. हम पनाह भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश स्टार्ट हो जाए तो आप जल्दी से किसी ट्री के नीचे चले जाएंगे जहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल आप पे नहीं होगी. इसी तरह एनिमल्स अपने होम्स भी इसमें बनाते हैं, बर्ड्स अपने नेस्ट भी प्लांट्स में बनाते हैं, ठीक है. हम प्लांट्स का फूड भी खाते हैं, हम उनसे फ्रूट्स भी लेते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं. प्लांट्स हमें शेड और शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ साथ प्लांट्स हमें एक इम्पॉर्टेंट गैस देते हैं विच इज़ ऑक्सीजन गैस, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग. ब्रीथिंग के लिए जो हमें गैस चाहिए होती है विच इज़ ऑक्सीजन, विच इज़ provided by the plants. वो हमें plants provide करते हैं, right? Now come to page number 29. On page 29 the first line is the wood we get from trees is used to make many useful things.
वुड मीन्स लकड़ी, गेट हासिल करना, ट्रीज दरख्त, यूजफुल मुफीद। सो जो लकड़ी हम ट्रीज से हासिल करते हैं, जो लकड़ी हमें ट्रीज देते हैं, उनको हम बहुत सारी मुफीद चीज़ें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्रीज से क्या करते हैं, हम ट्रीज को कट करते हैं, उससे हमें वुड मिलती है। उस वुड को हम बहुत सारी चीज़ें, यूजफुल चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर्स हो गया। ठीक है ना, हमारे घर में जो फर्नीचर है, बेड, टेबल, चेयर, डोर, विंडो, ठीक है, ये बनाने के लिए भी हम डिफरेंट फर्नीचर बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं वुड को। सिमिलरली जो टूल्स एंड टॉयज भी हम इससे बना सकते हैं। लाइक दिस पेंसिल इज मेड ऑफ वुड, ये पेंसिल भी किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है। ठीक है ना, इसी तरह हम डिफरेंट टॉयज भी वुड से बना सकते हैं, डिफरेंट टूल्स भी बनाते हैं, जैसे आपका क्रिकेट बैट हो गया या क्रिकेट हॉकी हो गई, ये भी हमारे पास वुड से बनती हैं। इसी तरह हम ब्रिजेस को बनाने में भी वुड यूज़ करते हैं, हम बिल्डिंग्स को बनाने में भी वुड यूज़ करते हैं। तो जो वुड हम ट्रीज से लेते हैं, उसको हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर्स हो गया, टूल्स एंड टॉयज हो गए, ब्रिजेस हो गई। ठीक है ना, इसी तरह और भी मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में हम वुड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स जो हैं दे आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स हमें फूड देते हैं, खाना देते हैं, प्लांट्स हमें वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं, प्लांट्स हमें शेड देते हैं, साया, हमें शेल्टर देते हैं। ठीक है ना, हमें पनाह देते हैं। प्लांट्स में बहुत सारे एनिमल्स के होम्स होते हैं, नेस्ट्स होते हैं बर्ड्स के। ठीक है, तो प्लांट्स हमें खाना भी देते हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं। प्लांट्स हमें वुड देते हैं, जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। प्लांट्स हमें साया देते हैं, प्लांट्स हमें शेल्टर भी देते हैं। इसके साथ साथ प्लांट्स हमें एक इम्पॉर्टेंट गैस भी देते हैं, विच इज़ ऑक्सीजन गैस, विच इज़ हेल्पफुल फॉर ब्रीथिंग, एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। ठीक है ना, हम जो ब्रीथ करते हैं या एनिमल्स जो ब्रीथ करते हैं, तो हमें गैस की ज़रूरत होती है, विच इज़ ऑक्सीजन गैस, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स। नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट चेक। Use the jumbled letters at the end of each sentence to fill in the blanks. हमें जम्बल लेटर दिया है हर सेंटेंस के एंड में। ठीक है ना, हमने उसको यूज करना है टू कंप्लीट द सेंटेंस। नंबर 1 इज plants are dash things. Plants are dash things. Plants are living things. LIVING, living. Plants are living things. सो ब्लैंक में क्या आएगा, लिविंग। इसको हमने जंबल ऑर्डर में है, इसको हमने करेक्ट किया है, तो लिविंग। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें हैं प्लांट्स। ठीक है, नंबर 2 इज प्लांट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। SIZES, साइजेस, SIZES, साइजेस। Plants are of many different shapes and sizes. SIZES, sizes. Now we will study about the parts of a plant. Parts means हिस्से। सो हम प्लांट्स के डिफरेंट हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टोमेटो प्लांट। टोमेटो मीन्स टमाटर, प्लांट्स मीन्स पौधा। सो हम पहले टमाटर के पौधे के बारे में पढ़ेंगे, टोमेटो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टोमेटो प्लांट हैव अ फ्रूट, fruit means फल, a leaf, leaf means पत्ता, a stem, stem means तना, and roots, roots means जड़े। So tomato plant have a fruit, leaf, stem and roots. टोमेटो प्लांट में क्या होता है, फल होता है, उसके पत्ते होते हैं, स्टेम तना होता है, एंड रूट्स जड़ें होती हैं, राइट। टोमेटो प्लांट हैव अ 4 पार्ट्स, फ्रूट, लीफ, स्टेम एंड रूट्स। देन वी हैव एप्पल ट्री। अब हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे, दरख्त के बारे में। एप्पल, सेब एंड ट्री मीन्स दरख्त। तो अब हम एप्पल ट्री के बारे में पढ़ेंगे, सेब के दरख्त के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं। एप्पल ट्री हैव अ फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल, अ फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल, अ ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाख, रूट्स, रूट्स मीन्स जड़ें, लीव्स पत्ते, एंड ट्रंक, trunk means तना। So apple tree has 6 parts: flower, fruit, branch, roots, leaves and trunk.
So plants have different parts and each part has its own function. हर part का अपना अलग काम होता है. Like roots have the function to take in the water. इसका काम क्या होता है कि water और nutrient को plant के अंदर लेकर जाता है, absorb करता है. ठीक है ना. Take in the water from the soil to the plant. वो plant के अंदर पानी लेकर जाता है. ठीक है. Roots का काम क्या है कि water को absorb करता है soil से. जब आप water देते हैं तो आप तो roots में नहीं डालते, आप तो soil में वाटर डालते हैं. तो रूट्स का काम क्या होता है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है. स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम वर्क एज अ लिफ्ट. वो लिफ्ट की तरह काम करता है. ठीक है ना. वो वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया, स्टेम वो पानी जो है डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाएगा, लीव्स तक लेकर जाएगा, ब्रांचेस तक लेकर जाएगा, फ्रूट तक लेकर जाएगा. अब लीव्स का काम क्या है? लीव्स कैन मेक द फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. जब सनलाइट होगी, एयर होगी और वाटर होगी तो लीव्स प्लांट्स के लिए फूड बनाएंगे. स्टेम का काम क्या है? स्टेम एज अ लिफ्ट काम करता है. वो वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर आता है और जो लीव्स ने फूड बनाया है वो फूड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाता है. तो स्टेम वर्क एज अ लिफ्ट. वो लिफ्ट की तरह का काम करता है. ठीक है ना. वो प्लांट को, वाटर को और फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट तक ले जाता है. रूट्स का काम क्या है कि वो वाटर को टेक इन करता है, वाटर को, मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. लीव्स प्लांट के लिए खाना बनाते हैं और स्टेम जो है फूड एंड वाटर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक लेकर जाता है. ठीक है. तो हर पार्ट का अपना काम है. इसी तरह फ्लावर्स का काम क्या है कि ये अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स को, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द सीड्स की डिसबर्समेंट में हेल्पफुल होता है. तो फ्लावर्स जो है ये बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. ठीक है. Now we have discussed about the living and the non-living things. We have discussed about the plants and its different kinds like the climbers, creepers, herbs, shrubs and trees. We have studied about the uses of the plants and different parts of the plants like stem, root, leaf, etc. We will continue this unit in the next video. Till then, Allah Hafiz.